یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر بنگلورو میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ کبھی سمیلن جسے آرگنائز کیا بزم شاہین بنگلورو نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے کنوینر رہے الحاج بابا جی۔ الحاج بابا جی بنگلورو شہر کے مشہور اور معروف عامل و کامل ماہر عملیات ہیں۔ دنیا بھر کے ہزاروں لوگ ان سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، جیسے کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، شادی بیاہ میں اڑچنیں ہیں، لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو دیر کس بات کی؟ آج ہی بنگلورو شہر میں الحاج بابا جی سے کانٹیکٹ کریں اور اللہ کے کرم سے بابا جی کی دعائیں حاصل کر کے زندگی کی ان پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ اب آئیے پھر میں کسی محترمہ کو آواز دینے جا رہا ہوں، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ پڑھی لکھی شاعرہ ہیں، ہندوستان کی شاعری کی تاریخ پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ صحافت سے ان کا تعلق ہے۔ محترمہ ڈاکٹر وسیم راشدہ صاحبہ، راشد صاحبہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جنہیں اپنا سمجھتی ہیں انہی کی جان لیتی ہیں، سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں اور ٹھہر جاتی ہیں پل بھر کے لیے صحنے گلستہ میں، بہاریں اپنے دیوانوں کا کہنا مان لیتی ہیں۔ بنگلور کو میرا خلوص بھرا سلام۔ ہم دلی والے بہت تکبر میں رہتے تھے، یہ سوچ کر کہ بہت بڑا مشاعرہ کرتے ہیں یوم جمہوریہ کا، اور ہم اردو والے صحیح معنوں میں دلی والے اردو کے سپاہی ہیں، لیکن آج اہل بنگلور کو دیکھ کر یہ یقین آ گیا ہے کہ دلی سے بڑے اردو کے سپاہی نہیں، اردو کے مجاہدین یہاں موجود ہیں۔ میں اردو کے مجاہدین کو پھر سے سلام کرتی ہوں۔ صحافت سے میرا تعلق ہے، چوتھی دنیا اردو اخبار کی میں ناچیز ایک چھوٹی سی ایڈیٹر۔ آپ کے سامنے ایک غزل کا مطلع اور چند اشعار۔ جی محترمہ عنایت۔ پہلے جو میں غزل پڑھ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ وہاں تک پہنچیے جہاں میں یہ غزل پہنچانا چاہتی ہوں۔ مہرباں ہے بہار خاروں پر، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مہرباں ہے بہار خاروں پر، آ گیا ہے نکھار خاروں پر۔ مہرباں ہے بہار خاروں پر، آ گیا ہے نکھار خاروں پر۔ اب آپ پہنچیے کہ میں نے کس کے لیے کہا ہے، کس پر نکھار آیا، کہاں بہار آئی اور خار کون ہے۔ مہرباں ہے بہار خاروں پر، آ گیا ہے نکھار خاروں پر، حال یہ ہے کہ اہل گلشن بھی، حال یہ ہے کہ اہل گلشن بھی ہو رہے ہیں نثار خاروں پر۔ حال یہ ہے کہ اہل گلشن بھی ہو رہے ہیں نثار خاروں پر۔ زرد موسم کی یہ کرامت ہے، زرد موسم پہچانیے، زرد موسم کی یہ کرامت ہے، خار خود ہے سوار خاروں پر۔ زرد موسم کی یہ کرامت ہے، خار خود ہے سوار خاروں پر۔ شعر
खूब सोए गुलों के साए में, खूब सोए गुलों के साए में, सोइए अब की बार खारों पर। वाह वाह वाह। खूब सोए गुलों के साए में, सोइए अब की बार खारों पर। जख्म फूलों से इतने खाए हैं, ये सियासी शेर आप तक पहुंच जाए बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जख्म फूलों से इतने खाए हैं, अब तो आता है प्यार खारों पर। वाह। जख्म फूलों से इतने खाए हैं, अब तो आता है प्यार खारों पर। मेहरबान है बहार खारों पर, आ गया है निखार खारों पर। वाह वाह वाह। ये गजल का मतलब चंद इरशाद देना। हर एक फूल पे कुछ ताजगी सी छाई है, हर एक फूल पे कुछ ताजगी सी छाई है। ये लग रहा है उसे मेरी याद आई है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। हर एक फूल पे, बहुत शुक्रिया। हर एक फूल पे कुछ ताजगी सी छाई है, ये लग रहा है उसे मेरी याद आई है। फिर अपना नाम सुना आज उसके होठों से, बहुत। फिर अपना नाम सुना आज उसके होठों से, आज उसके होठों से। हमारी आंख बहुत दिन में डबडबाई है। वाह वाह। फिर वाह, अपना वाह, नाम सुना। वाह वाह। काफिये का जवाब नहीं, बहुत अच्छा है। आप लोग भी शामिल हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। फिर अपना नाम सुना आज उसके होठों से, हमारी आंख बहुत दिन में डबडबाई है। तुम्हारी आंख ठहरती है सिर्फ गैरों पर। शेर देखिएगा, कौन से नवाजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सबकी दुआएं शामिल होंगी और आप सब शामिल रहेंगे। तुम्हारी आंख ठहरती है सिर्फ गैरों पर, तुम्हारी बज़्म से उठने में ही भलाई है। वाह। तुम्हारी शुक्रिया। तुम्हारी आंख ठहरती है सिर्फ गैरों पर, तुम्हारी बज़्म से उठने में ही भलाई है। तेरे खुतूत छुपाकर जला दिए मैंने, तेरे खुतूत छुपाकर जला दिए मैंने। ये किसने शहर में झूठी खबर उड़ाई है। वाह 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 वाह। तेरे खुतूत, बहुत इनायत। आप सभी हजरात की दाद मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। तेरे खुतूत, जी बहुत इनायत, मेहरबानी। तेरे खुतूत छुपाकर जला दिए मैंने, ये किसने शहर में झूठी खबर उड़ाई है। ये तो शेर आप सबकी नजर। ये मेरे अश्क हैं कागज पे दूर तक फैले, ये मेरे अश्क हैं कागज पे दूर तक फैले। जमाने वाले समझते हैं रोशनाई है। वाह वाह। ये मेरे अश्क हैं, बहुत शुक्रिया इनायत, आप सबकी मोहब्बतें। ये मेरे अश्क हैं कागज पे दूर तक फैले, जमाने वाले समझते हैं रोशनाई है। वाह वाह वाह। हर एक फूल पे कुछ ताजगी सी छाई है, ये लग रहा है उसे मेरी याद आई है। बहुत अच्छी मोहतरमा, जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह। माफ कीजिएगा मैं गीत नहीं पढ़ती। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है। एक ऐसी सच्चाई जिसको हम लोग मानते नहीं है दिल से, लेकिन होता यही है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। वाह वाह। घर से दुश्मन, आप हजरात सभी शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं लेकिन दाद नहीं देना चाहते। मैं आप लोगों की दाद चाहूंगी इस शेर पर। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें। दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। बहुत अच्छी। लहलहाती है मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं। जिस जगह पर भी उन्हें गर्द
जमी मिलती है। वाह वाह। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। ये शेर देखिए, मैं आप सबकी नजर कर रही हूँ। खाकसारी के लिए बादशाहों के यहाँ मत जाओ, खाकसारी के लिए खाकसारी के लिए बादशाहों के यहाँ मत जाओ। डाइस से भी मैं दाद चाहूंगी। खाकसारी के लिए बादशाहों के यहाँ मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए बहुत इनायत, मेहरबानी, बहुत इनायत, मेहरबानी। खाकसारी के लिए बादशाहों के यहाँ मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। और आखिरी शेर मेरी तमाम बहनों की नजर है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। वाह वाह। बहुत ही। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाख हो लोगों को खुशी मिलती है। बहुत इनायत। बहुत खूबसूरत। जी दोस्तों, मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिदा साहिबा ने फूल खुशबू कांटे को अपनी शायरी का मौजू बनाया। इशारों कनायों की गुफ्तगू का नाम शायरी है। कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत, बागबा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। अब आइए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिल व कामिल माहिर अमलियात हैं। देश विदेश के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभाल कर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माब जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुन्हा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो यह है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना
बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका, बेंगलुरु से।